Assalamu alaikum. The students. Today we are here with our chapter number 3 again, history of our world. As you all know that history is actually something that has happened before, and today in the last video we have done reading of page number 18 and half of page number 19. But today what I have decided is that after giving you a recap, we are not going to study from the book. Instead, I'll give you a general explanation of the history and whatever has been explained in your chapter first, so that you can have a clear idea of what the author is talking about in this chapter, because this chapter is very important, as we have 4 more chapters as a continuation of this chapter. So this is the basic of our 4 more chapters. So I really want that that you should have a very clear concept of this chapter. Okay, so starting with the history of the world, let us do a recap of this chapter. So before starting, let me just tell you what is meant by BC. Okay, what is meant by BC? BC is actually a Christian terminology, and it means before Christ. Who was Christ? Hazrat Isa alayhi salam or Jesus Christ, right? So BC actually are those years or that time period which was before Christ, before the birth of Hazrat Isa alayhi salam or Jesus Christ, right? Okay, what is AD? AD is a Latin word which stands for Anno Domino, and which means in the year of Jesus, of our Lord or Jesus. So actually this is Christian terminology, and we are because we use these terms a lot, so that is why I thought that they should be clear on you. So in this chapter we are using this term BC a lot to make you understand these two things. Let me draw a timeline. So let's say that Jesus or Hazrat Isa alayhi salam was born in this year, and all the years before this year are known as BC, and all the years after this year are called AD, right? So our last Prophet sallallahu alaihi wasallam was born in 550 AD, 550 years after the birth of Jesus Christ, right? So here in this chapter we are concerned about this area BC. So what does this BC BC actually is different from AD. AD is like the more you go, like for example we are living in 2021, right? So if we talk about 19th century, that is obviously earlier than 20th century, but in BC it is the opposite. 10,000 BC, 10,000 BC, and if this is 200 BC. So 200 BC is more earlier than 10,000 BC. 10,000 BC is a lot older than 200 BC. That is opposite. All right, so here in this chapter we are going to talk about prehistory and about those civilizations which came into being before Christ. So prehistory, what is prehistory? We talked about it, that prehistory is that time when people didn't know how to write.
they didn't know how to write. Okay, so this is that older a time period, prehistory. We called it that. But the time that is known from which people have started writing, the oldest time, that is 5500 BC. So 5500 BC, we know that period of time because people had started writing from that period. But actually human beings are much more older than that, right? This world is much more older than 5000 BC. इससे भी बहुत पुरानी है हमारी वर्ल्ड, राइट? I'll explain, I should tell you that I'm going to explain some of the content in Urdu because there are some students who are still commenting on our videos and they are requesting us to explain some of the content in Urdu so that they can also understand that. So the world that we are living in, it is actually much more older than 5000 BC. ठीक है, तो according to some estimates it can be as older as 10,000 BCs. 10,000 to 20,000 BC, right? तो हमारी वर्ल्ड इतनी पुरानी हो सकती है, हमारी वर्ल्ड इतनी पुरानी हो सकती है. एंड देयर आर मेनी थियरीज विच से दैट पीपल वर नॉट लाइक दिस, एज द ह्यूमन बीइंग वाज नॉट लाइक दिस एज वी सी देम नाउअडेज. दे वर एक्चुअली मच, दे वर एवोल्यूशंस दैट टुक प्लेस. हमारे जो ह्यूमन बींग्स हैं वो इस तरह दिखते नहीं थे इतने ईयर्स पहले, बट एवोल्यूशंस टुक प्लेस क्योंकि चेंजेस आती रही और उन चेंजेस के साथ वी फाइनली बिकेम, वी गॉट द शेप दैट वी आर इन, राइट? तो जो हमारे प्री हिस्टोरिक मैन है, जो प्री हिस्टोरिक पीपल और मैन इज कॉल्ड होमिनिड्स. ये भी हमने पढ़ा अपने चैप्टर में. होमिनिड्स किसको कहते हैं? होमिनिड्स आर एक्चुअली दोज एनिमल्स, उन एनिमल्स को कहते थे दोज हु कुड हैव वॉक्ड ऑन 2 legs, जो अपनी 2 legs पे वॉक कर सकते थे. तो क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स जो थे दे कैन वॉक ऑन 2 legs, तो हमारे प्री हिस्टोरिक मैन को हम लोग होमिनिड्स का नेम देते थे. ऑलराइट, तो क्या हुआ कि होमिनिड्स ने ग्रेजुअली, हमारे लोगों ने लर्न करना स्टार्ट किया अपनी लाइफ को इम्प्रूव करें. किस तरह इम्प्रूव करें? हाउ कैन दे सेव देमसेल्व्स फ्रॉम एनिमल्स, और जो और डेंजर्स थे उनकी इन्वायरमेंट में, उससे अपने आप को किस तरीके से वो सेव रख सकते थे. सो दे स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट. तो सबसे पहले क्या हुआ? इन्वेंशन ऑफ फायर. क्या हुआ? इन्वेंशन ऑफ फायर. इन्वेंशन ऑफ फायर इज ऑल्सो वेरी ओल्ड, और लेकिन इन्वेंशन ऑफ फायर से क्या हमें मिला, क्या एडवांटेज मिली ह्यूमन बीइंग्स को? कि दे स्टार्टेड कुकिंग देयर फूड. ठीक है, उन्होंने अपने फूड को कुक करना स्टार्ट किया, उन्होंने अपनी केव्स को लाइट करना स्टार्ट किया, राइट? और उस फायर की वजह से दे यूज टू कीप देमसेल्फ सेफ. किस तरह? कि वो एनिमल्स को उस फायर से डराते थे. सो फायर की इन्वेंशन से एक बहुत बड़ा चेंज इनकी लाइफ में आया. ठीक है, अब what was the most difficult task, or the most important task to do at that time was hunting for food. क्या सबसे important था उनकी लाइफ में? hunting for food. और क्यों? बिकॉज इट वॉज द बेसिक नीड ऑफ लाइफ. आपको जिंदा रहने के लिए सबसे ज्यादा जो चीज चाहिए होती है दैट इज फूड. ओके, सो फूड की हंटिंग के लिए, जस्ट टू कीप देमसेल्व्स अलाइव, दे हैड टू हंट. ठीक है, और जो हंटिंग वो करते थे, बिकॉज ऑफ दैट हंटिंग दे वर कॉल्ड हंटर गैदरर्स. ये भी हमने अपनी जो बुक है उसमें हम पढ़ चुके हैं. हंटर गैदरर्स. क्या सीखा एक इंसान ने? एक इंसान ने ये सीखा कि
हमें एनिमल्स से अपने आप को सेफ रखने के लिए एक तो हमें वी हैव टू लिव इन द फॉर्म ऑफ ट्राइब, यानी हमें ग्रुप की फॉर्म में रहना पड़ेगा। दूसरा उन्होंने क्या सीखा, जस्ट टू कीप देमसेल्व्स अलाइव, कि उन्होंने हंटिंग करनी है। सो दे वर कॉल्ड हंटर गैदरर्स। हंटर गैदरर्स का मतलब है दे यूज टू हंट एंड दे यूज टू लिव टुगेदर। सो दे यूज टू मूव इन द फॉर्म ऑफ अ गैदरिंग और ग्रुप, तो उनको हंटर गैदरर्स कहते थे। स्लोली एंड ग्रेजुअली, बिकॉज दे यूज टू रोटेट, दे यूज टू चेंज देयर प्लेसेस इन सर्च ऑफ हंटिंग, सो दे वर कॉल्ड नोमैड्स। नोमैड्स क्या कहते थे हम इनको? नोमैड्स कहते थे। और नोमैड्स कौन है? ये वो लोग थे जिनको आप उर्दू में कह सकते हैं खाना बदोश, because they used to move from one place to another in search of food. All right? तो ये जो हमारे प्री हिस्टोरिक मैन थे, इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम था फूड और उसके बाद लिविंग। तो इसकी सर्च में दे यूज टू मूव एंड मूव एंड मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो इन्हीं नोमैड्स ने जब इन्वेंट कर ली फायर, तो उससे भी इनकी लाइफ में चेंजेस आने स्टार्ट हुए, बिकॉज दे यूज टू कुक देयर फूड, जिससे एक हेल्दी फूड उनको मिलने लगा और उनकी लाइफ ज़्यादा हुई। दे वर मोर हेल्दियर देन बिफोर, और उनकी सेफ्टी भी और सिक्योरिटी भी थोड़ी सी इंक्रीज हो गई। ओके, फिर क्या हुआ? वॉट अदर थिंग हैपेंड दैट इन देयर लाइव्स वाज, इन्होंने डिस्कवर किया agriculture. What is agriculture? Agriculture is basically farming. जी, तो एक और क्या इन्वेंशन हुई या डिस्कवरी हुई? दैट वाज फार्मिंग। दे डिस्कवर्ड कि अगर हम रिवर्स के पास रहेंगे और हमें इरिगेशन के लिए वाटर मिलता रहेगा, तो वी कैन ग्रो क्रॉप्स। और ये एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी इन देयर लाइफ, बिकॉज इस डिस्कवरी के साथ दे स्टार्टेड अ प्रॉपर प्रोफेशन विच वाज फार्मिंग। और फार्मिंग ने इनको बहुत ज़्यादा एडवांटेज दिया। इन व्हाट सेंस कि हंटिंग करते हुए दे हैड टू मूव अराउंड, ऑल राइट। और इसमें एवरी मेंबर ऑफ द फैमिली हैड टू हंट, और उनको डेली बेसिस पर हंटिंग करनी पड़ती थी। एंड एवरीबडी वॉज बिजी, एवरी फैमिली हैड टू हंट फॉर देमसेल्व्स। लेकिन फार्मिंग में व्हाट वाज द डिफरेंस कि इफ वन पर्सन इज फार्मिंग, सो ही कैन ग्रो फूड फॉर सो मेनी अदर पीपल। अगर एक आदमी फार्मिंग कर रहा है एंड ही इज ग्रोइंग क्रॉप्स, तो उससे सब उसकी फैमिली के अलावा बहुत सारी और फैमिलीज भी फीड हो सकती हैं। सो दिस वाज द चेंज दैट हैपेंड। लोगों ने फार्मिंग को अपना प्रोफेशन बनाना स्टार्ट किया। दे स्टार्टेड गेटिंग सेटल्ड नियर रिवर्स। दे स्टार्टेड गेटिंग सेटल्ड नियर रिवर्स। और रिवर्स के साथ रहने का क्या एडवांटेज हुआ? दे स्टार्टेड ग्रोइंग क्रॉप्स। उन्होंने क्या ग्रो करना स्टार्ट किया? क्रॉप्स। सो जैसे जैसे क्रॉप्स ग्रो करते गए, दे यूज टू डू इट ऑन लार्जर एंड लार्जर स्केल। और फिर ये डिस्कवर हुआ कि क्योंकि कुछ एक ग्रुप जो है अगर वो फार्मिंग कर रहा है, तो देन द अदर ग्रुप ऑफ पीपल कैन डू समथिंग एल्स। इट वॉजंट नेसेसरी फॉर एवरीवन टू डू द सेम जॉब। तो क्या हुआ? ग्रेजुअली उनकी सोसाइटी में डिविजन ऑफ लेबर प्रोड्यूस हुआ। व्हाट इज दिस टर्म? डिविजन ऑफ लेबर। डिविजन ऑफ लेबर क्या होता है? डिविजन ऑफ लेबर का मीनिंग है व्हेन इन अ सोसाइटी डिफरेंट पीपल आर वर्किंग इन डिफरेंट एरियाज इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड दे आर डूइंग डिफरेंट जॉब्स, तो उसको हम कहते हैं डिविजन ऑफ लेबर। प्रीवियसली वो सब क्या कर रहे थे? they were hunter gatherers, all of them were doing hunting for food, क्योंकि सबने जिंदा तो रहना था, obviously they were supposed to do something अपने फूड के लिए। फिर क्या हुआ कि उन्होंने फार्मिंग करनी स्टार्ट की। जब उन्होंने फार्मिंग स्टार्ट की, तो स्लोली एंड ग्रेजुअली दे डिस्कवर्ड कि फार्मिंग से दे कैन हैव मोर फूड फॉर जस्ट मोर देन वन फैमिली। इसका मतलब वो एक से ज्यादा फैमिलीज को फीड कर सकते हैं। तो व्हाट हैपेंड कि किसी एक फैमिली ने अगर फार्मिंग की है, तो अदर फैमिली वाज डूइंग समथिंग इन कारपेंटिंग, और द थर्ड फैमिली वाज डूइंग समथिंग इन समथिंग एल्स।
तो इस तरह डिफरेंट प्रोफेशंस बनने स्टार्ट हुए, लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट काम करने स्टार्ट किए। किसी ने स्टोन कार्विंग कर ली, किसी ने वुड से चीज़ें बनानी स्टार्ट की, किसी ने होम बिल्डिंग स्टार्ट कर दी, किसी ने कुछ और स्टार्ट कर दिया। सो बहुत इनिशियल लेवल पर इन दिस वे दे स्टार्टेड डूइंग डिफरेंट जॉब्स, और इसको हम कहते हैं डिविजन ऑफ लेबर। इसको हम कहते हैं डिविजन ऑफ लेबर। अच्छा, एक और चीज़ विच अ वेरी मेजर चेंज दैट हैपन, या जो एक डेवलपमेंट होनी स्टार्ट हुई इन देयर लाइव्स, दैट वाज दैट सिविलाइजेशंस या small, before civilization I should say, small villages started growing near rivers. So small villages started growing near the rivers. इसका मतलब कि रिवर्स के करीब स्मॉल विलेजेस बनने स्टार्ट हो गए, जिसमें ग्रुप ऑफ पीपल वर लिविंग। ठीक है, जहां जहां दुनिया में रिवर्स थे उसके करीब लोगों ने अपनी लिविंग करनी स्टार्ट कर दी। उससे ये हुआ कि क्योंकि बिकॉज दे वर लिविंग इन ग्रुप्स एंड दे वर डूइंग, मोस्ट ऑफ देम वर डूइंग फार्मिंग, तो उन्होंने डिस्कवर किया कि नाउ दे कैन नॉट मूव टू अनदर प्लेस। इसका मतलब ये हुआ कि पहले जिस तरह वो नॉमेड्स थे, दे वर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड, वो स्टॉप हो गया। नाउ दे वर लिविंग परमानेंटली इन वन प्लेस। जैसे किसी एक रिवर के पास दे स्टार्टेड लिविंग परमानेंटली। अच्छा, अब क्या हुआ? दी स्मॉल विलेजेस दे स्टार्टेड ग्रोइंग। आहिस्ता आहिस्ता वो स्मॉल विलेजेस क्या बने? वो बने टाउन्स। ये स्मॉल टाउन्स क्या बने? वो बने सिटीज। और वो सिटीज, उन सिटीज से क्या बनी? सिविलाइजेशंस। क्या बन गया? civilizations, and they were very developed civilizations, though it took thousands of years. ये बहुत slow process था जिसमें thousands of years लग गए, but finally the civilizations developed. क्या develop हो गई? civilizations develop हो गई। उन स्मॉल विलेजेस से टाउन बने, टाउन से सिटीज बनी, सिटी से सिविलाइजेशंस, और इस प्रोसेस में दो इट टुक थाउजेंड्स ऑफ इयर्स, बट फाइनली वी हैड पीपल हु वर हैविंग गुड क्लोथिंग, जिनके पास क्लोथिंग थी, ठीक है, जिनके पास लैंग्वेजेस थी, और जो राइटिंग भी कर रहे थे, ठीक, वो डिफरेंट फूड भी ग्रो कर रहे थे, right, and they were having, अच्छा, अब because these rivers were in different places, क्योंकि वो अलग अलग places में थे, so उन सब लोगों ने जो वो ग्रुप्स में डिवाइड हो गए, ठीक है, some were living near, for example, river Nile, some of them were living near river Nile, कुछ जो थे वो रिवर टिग्रिस और यूफ्रेट्स के पास रहने लगे, कुछ रहने लगे रिवर इंडस के पास, कुछ रहने लगे येलो रिवर के पास। सो सिविलाइजेशंस जो डेवलप हुई, दे वर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। जो टिग्रिस और यूफ्रेट्स रिवर के पास सिविलाइजेशन थी, दैट वाज डिफरेंट। जो नाइल रिवर के पास सिविलाइजेशन थी, दैट वाज आल्सो डिफरेंट। इंडस वैली सिविलाइजेशन बिल्कुल डिफरेंट थी, और इसी तरह जो येलो रिवर के पास सिविलाइजेशन थी, दैट वाज आल्सो डिफरेंट। तो क्या डिफरेंसेस थे? डिफरेंसेस यही थे, उनकी क्लोथिंग्स एक दूसरे से डिफरेंट थी, उनकी लैंग्वेजेस डिफरेंट थी, देयर राइटिंग वाज डिफरेंट, देयर फूड वाज डिफरेंट, एंड देयर इवन कॉम्प्लेक्शंस वर डिफरेंट। इनके कॉम्प्लेक्शंस भी, व्हाट आर कॉम्प्लेक्शंस? दे आर द कलर ऑफ योर स्किन। कलर्स भी डिफरेंट थे, उनकी लैंग्वेजेस डिफरेंट थी, उनके इवन लिविंग स्टाइल, उनके हाउसेस भी एक दूसरे से डिफरेंट थे। और ये सारे डिफरेंसेस क्यों थे? व्हाट डज योर कॉमन सेंस टेल यू? This was the reason of the climate.
जिस कंट्री में जिस प्लेस पर ये लोग आबाद होते रहे, वहाँ पर जिस तरह का क्लाइमेट था, जिस तरह की इन्वायरमेंट थी, अकॉर्डिंग टू दैट उनकी क्लोथिंग थी, अकॉर्डिंग टू दैट उनके कॉम्प्लेक्शंस थे, अकॉर्डिंग टू दैट उनके हाउसेस थे, उनकी लिविंग थी। ठीक है, अगर वहां पे कोल्ड क्लाइमेट था तो ऑब्वियसली उनके हाउसेस इस तरह के थे विच यूज टू कीप देम वार्म, और अगर वहां पे वार्म क्लाइमेट था या हॉट क्लाइमेट था तो उनके हाउसेस ऐसे थे जो उनको कूल रख सकें, राइट। और सिमिलरली क्लोथिंग भी इसीलिए डिफरेंट थी, उनकी कॉम्प्लेक्शंस उनके डिफरेंट हो गए बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ द क्लाइमेट। ठीक है, तो इस तरह क्या हुआ, नाउ वी हैड डिफरेंट सिविलाइजेशंस इन द वर्ल्ड। दुनिया में हमारे पास जो लोग हैं, जो रेसेस हैं, दे आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। जैसे अगर आप एक अफ्रीकन को कंपेयर करें एक यूरोपियन के साथ, या एक यूरोपियन को कंपेयर करें एक एशियन के साथ, या एक एशियन को एक अरब के साथ, या एक अरब को एक चाइनीज के साथ, तो यू विल हैव अ क्लियर आइडिया कि इन सब में क्या डिफरेंसेस हैं, राइट। इनकी कॉम्प्लेक्शंस डिफरेंट हैं, इनके फीचर्स डिफरेंट हैं, इनकी क्लोथिंग्स डिफरेंट होती हैं, इनके फूड डिफरेंट हैं, इनकी लैंग्वेजेस डिफरेंट हैं, ये सब डिफरेंट है एक दूसरे से। और इसकी मेन रीजन क्या है, बिकॉज दे वर लिविंग इन डिफरेंट एरियाज, एक दूसरे से बहुत दूर दूर ये सिविलाइजेशन आबाद हुई थी। ऑल राइट, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया है कि हाउ दी सिविलाइजेशंस केम इनटू बीइंग। ये बहुत पुरानी बात है, ये हिस्ट्री डिस्कस हो रही है आपके साथ कि ये सिविलाइजेशंस, अब तो हम वी आर लिविंग इन कंट्रीज, वी हैव प्रॉपर सिटीज, वी हैव प्रॉपर बाउंड्रीज, बट ये उस वक्त की बात है जब दुनिया में पॉपुलेशन वाज वेरी लेस। और किस तरह ये कंट्रीज जो हैं दे केम इनटू बीइंग, ये था उनकी सारी हिस्ट्री। ओके, so now अब we are going to read about those civilizations which came into being, जो हमारी सबसे earliest civilizations हैं। We had 4 civilizations. The first was Mesopotamian civilization. The second is first was this, and the second is Egyptian civilization. The third one is Indus Valley civilization. And the fourth one is Chinese civilization. ओके, तो जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है दैट इज 3500, that dates back to 3500 BC. 3500 BC, यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बर्थ से 3500 ईयर्स पहले मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो है दैट केम इनटू बीइंग। ओके, उसके बाद आती है एंशियंट इजिप्शियन सिविलाइजेशन, और इजिप्शियन सिविलाइजेशन केम इनटू बीइंग इन 3100 BC, 3100 years before the birth of Jesus. Okay, then the third one is Indus Valley civilization, that is 3000 BC. ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बर्थ से 3000 साल पहले की सिविलाइजेशन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। चाइनीज सिविलाइजेशन इज 2000 BC, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बर्थ से 2000 ईयर्स पहले की सिविलाइजेशन है ये, जो चाइनीज सिविलाइजेशन कहलाई जाती है, राइट। सो नाउ मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन किस रिवर के पास थी? इट वाज इन द मिडल ऑफ टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स रिवर। ये है टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स रिवर, EUPHRATES।
टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स रिवर। आपको पता है कि यहाँ पर कौन सी कंट्रीज बाद में बनी है? द मेन सेंटर वॉज इराक, राइट? जॉर्डन, इराक, सीरिया, ये they were in the middle of this Mesopotamian civilization. Okay, the second was Egyptian civilization. This was with the river, कौन से रिवर के पास थी? रिवर नाइल। रिवर नाइल आपको पता है ना, दरियाए नील। इट्स अ वेरी फेमस रिवर, ठीक है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की स्टोरी सुनी है अगर, तो दरियाए नील भी आपको पता होगा, राइट? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की स्टोरी सुनी है, सॉरी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की अगर आपने स्टोरी सुनी है तो रिवर नाइल आपको जरूर याद होगा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मदर ने शी पुट हिम इन अ बास्केट और शी देन लेफ्ट द बास्केट इन रिवर नाइल, ठीक है, याद आया आपको? तो इजिप्शियन सिविलाइजेशन, और इजिप्शियन सिविलाइजेशन का मेन सेंटर क्या था? नेम से ही इट्स वेरी ऑब्वियस, इजिप्ट, मिस्र, ऑलराइट। इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन किस रिवर के साथ बनी थी? रिवर इंडस। आज भी रिवर इंडस है, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट इट। ये पाकिस्तान में फ्लो कर रहा है, इंडिया में फ्लो कर रहा है। सो इस सिविलाइजेशन के मेन सेंटर्स कौन बने हैं आजकल? दे आर पाकिस्तान एंड इंडिया, ओके। पाकिस्तान एंड इंडिया वर द मेन सेंटर्स, ओके। चाइनीज सिविलाइजेशन कहाँ बनी थी? येलो रिवर के पास, येलो रिवर के पास, राइट? और इसका सेंटर अब आजकल कौन है? इट्स वेरी ऑब्वियस फ्रॉम द नेम, इट्स चाइना, इट्स चाइना. So now you have understood that these four were the civilizations, and in the next 4 chapters you are going to read about these properly, and about each and every of these civilizations in detail. Their languages, their clothing, their food, everything was different from each other, and which was more developed civilization, which one was developing. This you are also going to discuss there. So I hope you must have understood all the plot of this chapter very properly. In the next video I'm going to give you some tasks, some written tasks about this chapter. Thank you.